Good morning, students. Good morning once again, and welcome you all to the session number 5 of this placement preparation program. Today, we would be talking about revision or a flashback of the topics which we have covered in the first 4 sessions, that is, resume and CV. Then second one is group discussion, some basics and introduction, and again group discussion, the most important do's and don'ts. Okay, and finally the communication skills part. So all these topics we will be revising very briefly here. I hope you all stay with me to the end and just brush up all the things that we have already studied. If you are having, just keep a piece of paper and pen with you all, guys. Okay, so first we'll start with the resume and CV. Guys, as far as this resume and CV is concerned, you all know that resume or CV is the first piece of information that goes to the interviewer or to any third person before they even see you. आप लोगों को देखने से पहले आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन एक थर्ड पर्सन को मिलता है वो मिलता है थ्रू अ रिज्यूम और सीवी. सो दैट इज व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस सीवी का इंपॉर्टेंस है कई बार हम लोग समझते हैं, उसकी वजह से जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं स्पेशली इन द बैचलर्स फाइनल ईयर्स, what they do is they just copy paste the details from any random format. They don't give it a personal touch, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो होता है मिस हो जाता है. So the main objective of the resume or the CV session is to ensure कि आप लोग समझें कि CV इतना important क्यों है और resume और CV में basically क्या फर्क होता है. Okay, so that is what we are going to do today. शुरुआत करते हैं. बेसिकली सीवी, दैट इज करिकुलम वाइटे एज दे कॉल इट, इज अ लैटिन वर्ड. एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ. ओके, सो सीवी के अंदर जनरली क्या होता है? इट इज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रीवियस ऑक्यूपेशन. रिज्यूम अगेन इट्स अ फ्रेंच वर्ड और उसका मतलब होता है समरी. ओके, रिज्यूम होता है इट्स अ प्रिसाइज समरी ऑफ योर वर्क experience and background relevant to job. The word itself means resume means summary. Precise summary means एक short में आप सिर्फ बताना चाहते हैं कि आप जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेवेंट आपका क्या एक्सपीरियंस है या फिर इससे रिलेवेंट आपका क्या बैकग्राउंड है. ओके, सो दिस व्हाट अ रिज्यूम एज वेल एज सीवी इज. And by the end of this session, you will come to know as to what is the basic difference between a resume and a CV, and what will you preferably have. Do you have a resume or a CV? There are a lot of material available in the net regarding resume as well as CV. So I have tried to find out the most authentic ones and the ones that would be useful to you the most. Okay. If I just want to differentiate, resume generally बहुत लंबा नहीं होता. It is around one or at the most 2 pages. That's what I always feel. Resume जो है आप लोगों का 1 या 2 पेज मैक्सिमम होना चाहिए. एंड CV, बिकॉज जो हमने पढ़ा शुरुआत में, इट्स योर कोर्स ऑफ योर लाइफ. आपने पास्ट में जो जो इंस्टीट्यूशंस में सर्व किया, ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क किया है, वहाँ के आपके सारे एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, क्वालिफिकेशंस, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर CV. इसीलिए कभी भी अगर आप नेट के अंदर सर्च करेंगे, इफ यू फाइंड द CV ऑफ मनमोहन सिंह might be any renowned scientist or educationalist or any person, it's relatively very long. 20, 30, 40 पेजेस के CVs होते हैं. But generally the novice engineers or might be the fresher students, they generally go for resume. Okay, resume is generally industry specific. If I'm applying for an academic institution for a job of a faculty or an academician, in that case मेरा resume जो होगा उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड होगा. इफ आई एम अप्लाइंग फॉर एन इंडस्ट्री, तो मेरा जो रिज्यूम होगा उसके अंदर मेरी क्वालिटीज इट वुड बी शोइंग और पोर्ट्रेइंग माय एबिलिटीज एज अ इंडस्ट्री पर्सन और माय टेक्निकल नॉलेज. अगर मैं रिसर्च बैकग्राउंड के लिए किसी चीज़ में अप्लाई कर रहा हूँ, इन दैट केस जो क्वालिफिकेशंस उसमें मेंशन करूँगा वो सारी चीज़ें इट वुड बी रिलेटेड टू रिसर्च. जबकि सीवी इज एक्चुअली कॉमन. सीवी ये पर्पस के लिए अलग, सीवी दूसरे पर्पस के लिए अलग. सीवी डजंट हैपन. Even if you're applying to an industry, you're applying to an organization or might academic institution or organization, might be research organization, whatever it is, your CV remains the same. Whereas your resume changes slightly depending on where you are actually applying. Okay? और resume जो है it emphasizes the skills. Obviously, अगर मैं टीचिंग फील्ड के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहा हूँ, आई विल ट्राई टू एम्फेसाइज माई स्किल्स दैट वुड बी रिलेवेंट इन टीचिंग. मेरी टीचिंग स्किल्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा. If I am trying to apply for the post of a research officer, might be in a scientific organization or research institute, तो मैं उसके अंदर मेरी जो साइंटिफिक एबिलिटीज़ हैं, मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो सारी चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा.
And your CV, it encompasses all your achievements. Overall एक combined data है कि आप लोगों ने आपके academic as well as प्रोफेशनल करियर के अंदर क्या क्या चीज़ें की हुई है. सो इट इज़ अ समरी. So I think by this the difference between CV as well as resume would have been much more clear to you guys. CV is generally long, it can be long. धीरे धीरे as you grow in your experience, this thing grows. Whereas a resume generally is of 1 or 2 pages. Resume is industry specific, whereas your CV is common for all the application. Resume specifies particular skills required for the job profile, and CV, it emphasizes your academic accomplishments more. Okay. बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर सीवीज और योर रिज्यूम स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स. I would be now using the word resume more because I feel that resume is what is more relevant to you guys. रिज्यूम में क्या क्या गलतियां मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं और आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि आप लोग ये गलती ना करें. एज आई ऑलरेडी सेड, दिस इज द फर्स्ट पीस ऑफ पेपर और फर्स्ट पीस ऑफ इन्फो दैट द इंटरव्यूअर और द अदर पर्सन गेट्स अबाउट यू. उसके अंदर अगर आप लोग कोई बेसिक ब्लंडर कर देते हैं या कोई इतनी एक छोटी सी एरर कर देते हैं कि सामने वाले को लगे कि एक बंदा जो अपने बारे में ठीक से अच्छे से लिख नहीं सकता, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब क्या करेगा. इट मीन्स ऑलरेडी आपका जो एक अपॉर्चुनिटी है, यू हैव ऑलरेडी कट डाउन योर अपॉर्चुनिटी. सो प्लीज एंश्योर दैट यू डोंट डू दिस. ओके. सो पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात, many times you see that in a resume people put on their photos. Right side top corner पे जनरली एक फोटो रहता है. Don't put on modeling photos or your pouts or your selfies. Just put a normal professional passport size photo. समझने की कोशिश कीजिए. The other guy just wants to see your face so that he can recognize you. It's not a matrimonial or Facebook or your social media handle that you put on your stylish and selfies and all those things. Try to put a recent professional passport size photo. ओके. ये बहुत गलतियां करते हैं लोग. जनरली दे पुट ऑन वेरी टैकी एज वेल एज फनी एंड कलरफुल फोटोज. दिस रियली गिव्स अ बैड इंप्रेशन. सो जो आपका जो फोटो है उसके अंदर ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एंड प्रोफेशनल एज पॉसिबल. सीवीज और रिज्यूम्स के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आप जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव हैज टू बी स्पेसिफिक टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. ओके. अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं एक एकेडमिक पोस्ट के लिए इन कॉलेज फॉर माइट बी यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी, इन दैट केस यू नीड टू इंश्योर कि आप अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर इस तरह से बताएं कि सामने वाला जो आपका रिज्यूम पढ़ रहा है उसको लगेगा कि नो, ही हैज़ टेस्ट फॉर एकेडमिक, ही हैज़ अ टेस्ट फॉर टीचिंग. उसका टीचिंग अच्छा होगा. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ माइट बी इंजीनियर इन एनी इंडस्ट्री, तो आप लोगों को उससे रिलेवेंट कोई चीज़ लिखनी है. प्लीज़ डोंट कॉपी पेस्ट द ऑब्जेक्टिव. मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, एज सुन एज दे रीड दिस ऑब्जेक्टिव दे कम टू नो दैट द सीवी इज जस्ट कॉपी पेस्टेड एंड दे जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस गाय इज नॉट अ जेन्युइन गाय, और आप लोगों का सिलेक्शन के चांस जो होते हैं बहुत कम हो जाते हैं. कीप योर ऑब्जेक्टिव वेरी सिंपल. मैंने ऐसे केसेस देखे जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव जो था कॉपी पेस्ट करके रख देते हैं और जब एम्प्लॉयर्स को बोलते हैं आपने क्या लिखा है, आप जस्ट पढ़ के उसका मतलब समझा दीजिए. And the students fail miserably in even explaining what they have written in their objectives. आपके साथ ये ना हो, इसीलिए प्लीज मेक योर ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियर. ऑब्जेक्टिव को सिंपली आप पुट अप कर दीजिए. आई वांट टू गेट जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन इम्प्रूव माई स्किल्स एंड ऑल्सो एड टू द क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कुछ भी, यू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, बट प्लीज डोंट कॉपी इट फ्रॉम एनीवेयर. CV की लेंथ, as I already said, try to keep it optimum. 1 or 2 pages, resume का 1 or 2 pages at the most, and you all being freshers, preferably always keep 1 or 2 pages resume. Try to be always as short as possible and as sweet as possible. Maximum possible information put in the best possible way. Okay. Again, a very important thing that you need to understand is resume में कई लोग कोई order या sequence follow नहीं करते. There generally are 2 sequences that can be followed. एक जो होता है लेटेस्ट फर्स्ट. जो एग्जाम्स मैंने लास्ट में पास किए, जो मेरी लास्ट की क्वालिफिकेशन है, उसको मैं फर्स्ट मेंशन करूं. दैट कैन बी द फर्स्ट पैटर्न. दैट इज सपोज इफ आई एम परस्यूइंग माय PhD नाउ, सो व्हाट आई वुड मेंशन इज PhD, देन मास्टर्स, देन बैचलर्स, देन HSC, देन SSC. Okay, and the other order is that is as it happens in the sequence. That is, first I passed my SSC, then HSC, then bachelor's, master's and PhD.
आप ये जो भी सीक्वेंस फॉलो करते हैं इसको थ्रू आउट हर जगह पे सेम सीक्वेंस रखिए. इफ आई एम फॉलोइंग लेटेस्ट फर्स्ट, अगर मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लेटेस्ट क्वालिफिकेशन को फर्स्ट लिखा है, तो आप नीचे जब अपना अचीवमेंट्स लिख रहे हैं उस टाइम पे भी अचीवमेंट्स में भी लेटेस्ट अचीवमेंट शुड कम फर्स्ट. जो भी नीचे कैटेगरीज है हर चीज के अंदर आपका जो लेटेस्ट अचीवमेंट है दैट हैज टू कम फर्स्ट. This gives a very good impression in front of the employer. They come to know that your organizing power or might be your organization is relatively very good. ये चीजें सारी आपके रिज्यूम के अंदर से सामने वाला नोटिस करता है. सो प्लीज एंश्योर कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करें. कई लोग समझते हैं जो रिज्यूम है अपना, जो वो एक्चुअली जीटीयू का क्वेश्चन पेपर है और हमें इसके अंदर जितना हो सके उतना कंटेंट लिखना है. लोग पैराग्राफ्स की तरह डेटास लिखना स्टार्ट कर देते हैं और ऑलमोस्ट एवरी इंफॉर्मेशन दैट दे पुट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस, मेकिंग इट वेरी बिग एंड पैराग्राफ्स. दिस अगेन डज नॉट वर्क इन योर फेवर. आप जस्ट एक ही चीज फोकस कीजिए दैट employer might be in one day would be going through might be on an average 10-15 resumes. Okay, in that if he just goes on to read all this information, उसके बाद उसको माइट भी ग्रुप डिस्कशन भी करना है, टेक्निकल इंटरव्यू भी लेना है, पर्सनल इंटरव्यू भी लेना है, all these things has to be done by him. So if he goes to read all these paragraphs, it's relatively very long. So please ensure कि आप लोग हर चीज को precise and to the point लिखें. आपका ग्रामर और आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर वो सारी चीजें वहां पे नहीं देखना चाहते वो लोग. दीज थिंग्स दे कैन एनालाइज इन योर ग्रुप डिस्कशन एज वेल एज योर पर्सनल इंटरव्यूज. वहां पे हर चीज को शॉर्ट एंड स्वीट लिखिए. ओके, सो अगेन जो ऑर्डर की बात मैंने पहले आपको बताई, पेंटर सर हैज जस्ट मेंशन दैट व्हिच ऑर्डर इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू. व्हाट आई ऑलवेज प्रेफर इन माय सीवी आल्सो इज द लेटेस्ट फर्स्ट, बिकॉज दैट इज ऑलवेज इजियर टू गो ऑन. जो लास्ट आपकी अचीवमेंट्स है दैट इज अकॉर्डिंग टू मी एंड दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू मेनी ऑफ द एचआर पीपल दैट आई टॉक टू इज मोस्ट रिलेवेंट, बिकॉज आपके एसएससी के मार्क्स माइट नॉट बी दैट रिलेवेंट एट दिस स्टेज. माय एसएससी एचएससी और माय स्कूल मार्क्स माइट नॉट बी दैट रिलेवेंट एट दिस एज. अगेन जो आपने स्कूल में किया हुआ वो को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का रिलेवेंस रिलेटिवली अभी कम रहता है एज कम्पेयर टू आपने जो कॉलेज में प्रोजेक्ट्स किए. सो ऑलवेज ट्राई टू पुट द लेटेस्ट थिंग फर्स्ट. Okay, that's my personal thing. Otherwise, you can follow the other order also. But whatever order you follow, ensure that you maintain that same order in your resume throughout. Okay, formatting again very important thing. Students, आप लोग Microsoft Word के अंदर generally the students make their resume. आप लोग formatting नहीं करते. Many of the times it is left aligned, sometimes right aligned होता है. कुछ sentences they are shorter, some sentences they are longer. There is no proper formatting. कुछ लेफ्ट अलाइंड है, कुछ राइट अलाइंड है, टेबल बनाया हुआ है तो कुछ उसके अंदर लेफ्ट पे है, कुछ नीचे के साइड पे, कुछ ऊपर के साइड पे. इट लुक्स वेरी बैड. योर रिज्यूम इन अ पेपर टेल्स व्हाट इज द नेचर ऑफ द पर्सन इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के काम में आप कैसे हैं वो सामने वाले को पता पड़ेगा आपका एक रिज्यूम देख के. आपका एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी इन्फो के साथ अपनी इन्फो आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट दैट गाइज विल कम टू नो. सो प्लीज use proper formatting. All these tools are very easily available in your Microsoft Word. You don't need to do much. Just align kar dijiye, that's it. In the same sense, the I would say the biggest blunder that students do in their resumes or CV is spelling mistakes as well as grammatical mistakes. Guys, I repeat on this live platform, red lines जो आते हैं आपके resume के अंदर in Microsoft Word, it means there is some spelling mistake. The green lines indicate that there is some grammatical mistake. Correct spelling आपको नहीं पता, you just go and give it a right click. They will give you the correct option. Please select the appropriate option. That's it. Please don't make spelling mistakes in your CVs. इतने blunders मैं literally देखे हैं that even being a faculty, if my own student does this, I really feel so bad. तो आप समझ लीजिए जो एक इंटरव्यूअर जो है या जो एम्प्लॉयर जो आपको रिक्रूट करने के लिए इंटरव्यू लेने जा रहा है, अगर उसने आपके बारे में ऐसा देख लिया कि इसको ये नॉर्मल बेसिक जो स्पेलिंग है या ग्रामर है वो नहीं आता है, बिलीव मी योर चांसेस आर वेरी 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 नील. आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. सो प्लीज एंश्योर कि आप लोग इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें. अगेन, one thing that is applicable throughout our professional as well as personal life is honesty is the best policy. Be honest and sincere in whatever you are doing. Please don't put up wrong data in your resume. This might be more relevant to people who are applying for new jobs. एक जगह जॉब कर रहे हैं और might be दूसरी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा relevant है, because
दे नीड टू मेंशन देयर करंट कंपनी CTC और पैकेज. यहाँ पे कई लोग डेटा फेक करते हैं. Might be 30,000 की सैलरी होती है, they mention 35,000, might be 40,000 just to get more hike. For in case of students also, don't put in wrong marks. Number of backlogs है आपके जितने भी हैं सच बता दीजिए, because everything is going to come out. आपका एनरोलमेंट नंबर डालने से आपका पूरा GTU का हिस्ट्री, आज तक आपको कितने बैकलॉग्स थे, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज इमीडिएटली अवेलेबल ऑनलाइन नाउ. सो नेवर एवर फेक एनी डेटा. कभी भी रिज्यूम के अंदर प्लीज डोंट पुट इन एनी रॉन्ग डेटा. Okay, again, the importance of resume, as I already told you, किसी को मिलने से पहले अगर आपको अपनी इंप्रेशन उनके सामने बनानी है, इट्स द बेस्ट पॉसिबल थिंग. रिज्यूम ऐसा होना चाहिए कि आपका रिज्यूम देख के सामने वाला बंदा सोचे, यार ये बंदे से तो मिलना पड़ेगा, आई नीड टू मीट दिस गाय एटलीस्ट. And believe me, this resume is not only about your GTU or your academic marks, it's about your co-curricular activities also. It's about your extracurricular activities also. It's about your hobbies also. It's also about your achievements. ऐसी कुछ चीज़ें आप लोग इसके अंदर मेंशन कीजिए जिसे देख के उनको लगे कि नहीं, ये बंदे से एक बार मिलना पड़ेगा. यस, प्लीज कॉल दिस गाय. अगर आपने एक ऐसी क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी इंटरव्यूज के अंदर आपका रिज्यूम दिखा के, बिलीव मी, वेल बिगन इज हाफ डन. आपका आधा काम ऑलमोस्ट हो चुका है. अनलेस एंड अनटिल आप अंदर जाके कुछ ब्लफ कर दें या फिर आप कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर कर दें, आपके चांसेस बहुत इजी हैं अगर आपने अच्छा सा एक रिज्यूम बना दिया. और हमेशा जब भी आप लोग कोई भी रिज्यूम डालते हैं इन कॉलेजेस, ऑल द कैंपस इंटरव्यूइंग कंपनीज, दे वुड बी क्रॉस चेकिंग ऑलमोस्ट ऑल द डिटेल्स विद द डिपार्टमेंट्स. एक जॉब से दूसरे जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं आप, तो भी वो लोग आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करते हैं. रेफरेंसेस रिज्यूम के अंदर इसीलिए मांगा जाता है ताकि सो दैट दे कैन वेरीफाई दैट द स्टूडेंट is giving all the information that is accurate. Okay, so never ever fake data. And resume का दूसरा importance, it is the last chance to make it to the personal interviews. अगर आपके रिज्यूम में दम नहीं है तो आपका जो जॉब का अप्रोच है या फिर द प्रोसेस ऑफ योर प्लेसमेंट इज ऑलमोस्ट एंडिंग देयर. आप अगले स्टेज के लिए नहीं जा रहे. So please ensure that whenever you make your resume, it is the first step, and I would say one of the most important steps in the placement procedure. So इसीलिए हम लोगों ने ये सेशन सबसे पहले लिया था ताकि आप लोग रिज्यूम का इम्पोर्टेंस समझें और सबसे पहले खुद ही अपने हिसाब से almost each and every student who is attending this, in fact almost every student who is in the 3rd or the 4th year, they should be having a resume of their own. You should be updating this resume almost every month. हर एक मंथ में आपने एक नई ट्रेनिंग सपोज कुछ अटेंड की है, आपने कोई नया क्लास अटेंड किया, आपने कोई नया वर्कशॉप अटेंड किया, आपने कोई नया सेमिनार अटेंड किया, उस चीज़ को अपने रिज्यूम में डालिए और इसको अपडेट करते रहिए. बहुत सारे ऑनलाइन आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं और रेडीमेड फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसके अंदर जो डेटा डालना है, डेफिनेटली प्लीज चेंज ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स. बिकॉज आई हैव इवन सीन स्टूडेंट्स नाम चेंज करते, सरनेम चेंज करते, फादर्स नेम चेंज करना भूल जाते कई बार स्टूडेंट्स जल्दी. ऑब्जेक्टिव तो चेंज करते ही नहीं, लेकिन कई बार फादर्स नेम, एड्रेस, कई सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं. सो प्लीज डोंट मेक सच ब्लंडर्स. ओके, सो आई थिंक गाइस दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट आवर session on resume as well as CV. Now about group discussion. Group discussion, it was a relatively long session, but I would take it very precisely here. The most important thing that we need to do here is हमें समझना है difference group discussion और debate के बीच में. And the most important again factor is that we don't want debate, we want a group discussion. Group discussion word itself means a discussion group is a group of individuals who are typically sharing a similar interest. कोई similar interest है उन लोगों के बीच में, or they are gathering either formally or informally to discuss. Group discussion means to discuss some ideas, solve some problems or make some comments. कोई genuine एक problem है उसको solve करने के लिए, कोई topic के ऊपर बात करने के लिए इकट्ठा होता है, that is what is group discussion. Okay, this discussion involves people who are connected by some common activity. Generally students होते हैं तो वो लोग they are connected by a common organization, college might be a common department, ये लोग इससे connected होते हैं. Okay, so this is how group discussion happens. Whereas a debate क्या होता है? Debate is a process that involves formal discussion on a particular topic. In a debate, the most important thing is opposing arguments. Okay,
the word arguments is important, are put forward to argue for opposing viewpoints. Debate is more about arguing. मैंने ये कहा था, तूने वो कहा था, मैं सही हूँ, तू गलत है. That's what is in general sense or a rough sense, that is what a debate is. Group discussion क्या होता है? Okay, मुझे लगता है ये सही है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए. Other person will put their own view. Okay, so please understand, group discussion is what is required, what is meant for us as engineers when we are sitting in campus placements. आप लोग सोच नहीं सकते इतनी सारी चीजें ग्रुप डिस्कशंस के अंदर से कंपनीज आप लोगों से आप लोगों को मॉनिटर कर रही है. Okay, what are the different things that the companies look on? They look into different personality traits. आप लोगों के पर्सनैलिटी कई सारे एस्पेक्ट्स को वो लोग नोट करते हैं. दैट इज योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स. आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप लोगों का एक ग्रुप में 10 लोगों के बीच में आप कुछ बात करनी तो आप लोग कितने कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं. हाउ गुड आर योर लीडरशिप स्किल्स. आप लीडर्स एक ग्रुप के अंदर सपोज कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बोल ही नहीं पा रहे. हाउ वेल कैन यू प्रमोट दोज गाइज और हेल्प दोज गाइज हु आर नॉट एबल टू स्पीक टू पुट देयर पॉइंट्स. लीडरशिप स्किल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट दैट एम्प्लॉयर्स लुक इन योर ग्रुप डिस्कशन. आप लोगों का ये स्किल जो होता है जनरली दे ट्राई टू चेक वेरी वेल. लिसनिंग स्किल्स. ग्रुप डिस्कशन इज नॉट जस्ट अबाउट कौन सबसे ज्यादा बोलेगा, कौन कितनी देर तक बोलेगा, कौन सबसे ज्यादा जोर से बोलता है, कौन चिल्लाता है. इट्स नॉट दैट. इट्स अबाउट हाउ गुड अ लिसनर यू आर. दूसरा कोई बंदा जब कोई करेक्ट बात बोल रहा है या फिर सपोज इफ दे आर पुटिंग सम जेन्युइन वैलिड टॉपिक, they are putting in some very good inputs, at that time you need to pay very good attention. You should be a very good listener. Okay, so your listening skills are also seen there. ऐसा नहीं है ग्रुप डिस्कशन के अंदर आइदर आप बोल रहे हैं या फिर आपका ध्यान ही नहीं है. यू शुड बी गिविंग गुड पॉइंट्स एज वेल एज लिसनिंग टू गुड पॉइंट्स. ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. जो टॉपिक होता है उसके अंदर आपका जो नॉलेज है दैट इज वेरी वेल मेजर्ड इन दिस. Okay, I'll tell you the different types of group discussions that is there, but जो टॉपिक पे बात चल रही है उसके अंदर आपका नॉलेज कितना है that is also measured in your group discussions. Okay, and one of the most important thing again in group discussion, the employers, the moderators see that how good a team player a candidate is. Individually आप लोगों को काम नहीं करना है. In an organization you will be working with people from different cultural, ethical, lingual backgrounds. इन लोगों के साथ आप एक टीम में कितने अच्छे से बात कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग नोटिस्ड बाय दीज गाइस. सो एक ग्रुप के अंदर आप कितने अच्छे से मिंगल होकर दूसरों से बात कर सकते हैं, अपना पॉइंट रख सकते हैं, दूसरों का पॉइंट सुन सकते हैं, ये सारी चीजें ग्रुप डिस्कशंस के अंदर देखी जाती हैं. ओके, अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं, हाउ डू दे बिहेव. ग्रुप डिस्कशन जो लोग कर रहे होते हैं उनके अलग अलग रोल्स कौन से होते हैं. एक होता है बिगिनर, जो शुरुआत का जो ओपनिंग सेशन है उसको ओपन करता है, टॉपिक को ओपन करता है, एंड ही इनिशियली पुट्स अप हिज पॉइंट्स एंड स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन. ओके, देन देयर कैन बी सम पीपल लाइक फैसिलिटेटर और प्रायोरिटाइजर, जो अगर आपका ग्रुप डिस्कशन थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा है, जो मेन टॉपिक है उसे डिवेट हो रहा है, तो ही विल जस्ट अगेन चेक द कैंडिडेट्स और बोलेगा कि हेलो dear students, I feel that we are actually going away from the topic. Our topic is XYZ and not ABC. ओके, सो ये ग्रुप को मॉडरेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं फॉर अ हेल्दी ग्रुप डिस्कशन. ओके, कुछ लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन सीकर, सब जो बोलते रहते हैं उसको सुनते रहते, दे आर गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन. अगेन द अदर कैटेगरी, मेनी स्टूडेंट्स, दे आर इन्फो डिसेमिनेटर. कुछ लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते रहते, यू आर अगेन नॉट श्योर दैट वेदर द डेटा इज करेक्ट और नॉट. So you always have to see that you are a mixture of both these. You should be disseminating some good data, some good info, and you should also be receiving the good information that is available. These two things are very important. Then as they call it, they are known as devil's advocate. ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन कभी कोई बंदा कुछ अच्छा पॉइंट रख रहा होगा उसके ऊपर दे वुड जंप इन एंड दे वुड पुट सम कॉन्ट्राडिक्टरी रिमार्क्स विद अ वेरी वैलिड एंड जेन्युइन रीजन. कोई एक बंदा बोल रहा होगा तो वो उसके बीच में बोलेगा कि नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस बिकॉज एज पर सो एंड सो दिस ओके, बिकॉज दिस व्हाट इज हैपनिंग. उसका पॉइंट एकदम सही होगा, लेकिन वो खुद का कभी पॉइंट नहीं रखेगा. लेकिन जब भी उसको लग रहा है समवन इज गिविंग सम रॉन्ग पॉइंट और समवन इज रॉन्ग, ही वुड जंप इन एंड ऑब्जेक्ट इट. Okay, so they are known as devil's advocate. That's also a very good role that you can play in a group discussion. Then there are some leaders or supporters. कई बार in group discussion what happens is many students are not able to speak up.
कई बच्चे जो होते हैं बोल नहीं पाते, दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्पीक समथिंग और दूसरे लोग उसको आके दबा देते हैं और वो बोल नहीं पाते. Many times this thing happens. So some students, some participants I have noticed many times that what they try to do is they try to motivate or support these students to put their point. They are like, okay, 3 4 students are talking continuously and continuously, and then they would immediately they would come in with a big bang, and then they would say, hello, participants, I think Mr. A just wants to say something. I think we should also give him a chance to speak. Yes, please. So when you make such an entry, not for yourself, but आप किसी और के लिए इस तरह से एक एंट्री करते हैं, तो the rest of the participants that understand that yes, this guy is saying is correct. और ये जो बंदा होता है, ही गेट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू पुट हिज पॉइंट, बिकॉज इतनी देर तक कोई सुन नहीं रहा था, अभी सब उसकी बात सुनने के लिए ऑल आर क्वाइट नाउ. दिस शोज योर लीडरशिप स्किल व्हिच आई जस्ट प्रीवियसली मेंशन्ड. So this is also very important. And again, one more role is as the initiator or beginner I said, then again one more role can be that of the concluder. आप सेशन को जो है conclude कर सकते हैं with your closing remarks. ग्रुप डिस्कशन जनरली दो टाइप्स के होते हैं, आइदर इट कैन बी नॉलेज बेस्ड और कंसेप्चुअल, और यू कैन से कंट्रोवर्शियल और ओपिनियन सीकिंग. नॉलेज बेस्ड होता है, इट कैन बी माइट बी सपोज एग्जांपल कोविड-19, इंडियन इकोनॉमी, एयर इंडिया क्राइसिस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज, एनीथिंग. Okay, whereas for opinion seeking or controversial or conceptual, you can have your love marriage versus arranged marriage, all time favorite. And again, much more better than this is again government college versus private college. You can debate on this again and again and again, and this thing never ends. Evergreen topics. Okay, so whenever you want to start a group discussion, just give this topic of love marriage versus arranged marriage, and then you will have even the dumb speaking up. जिन्होंने आज तक जिंदगी मुंह नहीं खोला वो लोग भी चढ़ बैठेंगे. ओके, अगेन गाइस, जीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें एक साथ बहुत सारे बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं. व्हाट आई हैव सीन इज अराउंड ग्रुप ऑफ 10-15 स्टूडेंट्स गोइंग फॉर द जीडीज, दे टॉक इन फॉर 10-15 मिनट्स अगेन, और वो जीडी में से एक या दो बंदा सिलेक्ट होता है. इट मीन्स दैट द रेशियो इज माइट बी अराउंड जस्ट लेस देन 10% ऑफ पासिंग. ओके, सो ग्रुप डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट है. आपका टेक्निकल या फिर आपका जो एकेडमिक नॉलेज है दैट इज रिलेटिवली वेरी लेस, और आई वुड से वर्चुअली नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. वहाँ पे आपको कोई आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड सवाल नहीं पूछता है. द टॉपिक्स आर जनरली नॉट रिलेटेड टू टेक्निकल थिंग्स, दे आर आइदर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स बेस्ड, और दे आर ओपिनियन सीकिंग. ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो एकेडमिकली पुअर बच्चे होते हैं, जो क्लास में जिनको हम जनरली बैक बेंचेस कहते हैं, वो लोग एकेडमिकली साउंड और 8, 9, 10 SPA वाले बच्चों को दो देते हैं. They are not at all able to speak, and these backbenchers, they just kill it. And this is exactly the reason why the toppers, they are filtered out in this group discussion, and the backbenchers, they generally make it in the group discussion. And this is what exactly happens. I've seen this time and again. In fact, every time, many times, I have seen that students who are very average or below average academic record, they clear the GDs amazingly well, and the toppers are filtered out. It happens. Okay, so a lot of skills are required. Connectivity of your thoughts is required, and with broad knowledge of the topic. आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका एक बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए. एंड एज आई सेड, almost a very large plethora of your personality traits are checked in this. आप किस तरह के एक स्टूडेंट हैं, या फिर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी या नेचर के एट्रीब्यूट्स क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर चेक्ड इन दिस. ओके, सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Now, the last thing that about group discussion, what we are going to discuss is do's and don'ts, and that is very important. Please, in group discussion, be audible and clear. आपकी आवाज जो है सबको जानी चाहिए. Generally, you are sitting in a semicircular format. So what happens is, if you are sitting on one side of the corner, one side of semicircle, please ensure that you are audible to the other end also. Okay, use formal language and vocabulary. अरे यार, ओ यार, क्या यार, बे, don't use such slangs, because this is what is known as group discussion. It's a formal discussion. Please ensure you maintain formal language and vocabulary. Please wear the attire that you wear for your personal interviews. Personal interviews में जिस तरह के कपड़े पहन के आप जाएंगे, सेम उसी तरह के कपड़े आप यहाँ पे पहन के जाएंगे. मेंटेन एडिक्वेट आई कॉन्टैक्ट विथ एवरी पर्सन. जिससे बात कर रहे हैं उनसे भी, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनसे भी, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर ओवरऑल कॉन्फिडेंस.
Okay, when someone is giving some inputs, please pay attention to them. दूसरों के पॉइंट्स को, whenever they are genuine, whenever they are correct, acknowledge the point of others. आपको लग रहा है someone is not correct, in that case disagree politely. आप बोल सकते हैं कि I think I don't agree with you because as per what I feel, then this is what I have seen and according to him so and so. Disagree politely. डिबेट के अंदर यही चीज चिल्लम चिल्ली में चली जाती है, बट हियर ग्रुप डिस्कशन you have to be genuine, you have to be polite. Okay, and always in a group discussion be confident and maintain a firm posture whenever you are saying address the group, not a particular person. कई बार देखा गया है ग्रुप डिस्कशन के अंदर स्टूडेंट्स दे आर फोकसिंग वन पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट. इट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. आप जब भी बात कर रहे हैं ट्राई टू सी द एंटायर ऑडियंस. ओके, जो लास्ट स्पीकर ने बोला है ट्राई टू कनेक्ट विद देम. जो लास्ट स्पीकर ने बोला खत्म किया वही से शुरू कीजिए, सो इट गुड गेट अ गुड प्लेटफॉर्म. जो बोल रहे हैं इट शुड बी रिलेवेंट, it should be related to the topic. Please maintain a content which is rich in the topic about which you are talking. Okay, आपका जो leadership qualities है, try to showcase your leadership qualities as I already said. और ग्रुप डिस्कशन के अंदर जैसे मैंने बताया प्लीज टेक एवरीवन अलाउड. डिस्कशन कर रहे हैं सबसे ओपिनियन लीजिए, उनसे नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज उनका देखिए. एंश्योर दैट दे आर विथ यू. ऐसा नहीं कि आप बोलते जा रहे हैं उनको समझ में भी नहीं आ रहा. One very important thing is if you can start with a quote or definition. जब भी आप बोलना स्टार्ट करें, try to start with a quote. Okay, like suppose if the topic is love marriage versus arranged marriage, I can say as in a funny way that marriage is a ritual where the man loses his bachelor's degree and a woman gains her master's degree. Something like this would give you a very good start, would give you a very good punch into the सेशन के अंदर आपका जो एंट्री है इट वुड मेक द थिंग्स स्लाइटली स्मूथ एंड फ्रॉम देयर इफ यू कैन बिल्ड ऑन इट वुड गिव यू अ वेरी गुड कंटेंट. ट्राई टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट, योर पॉइंट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स. अगर जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं आप, उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स से सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए. दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल. कुछ चीज़ें जो आपको कभी नहीं करनी है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, दैट इज डोंट बी एरोगेंट, डोंट शाउट, डोंट एब्यूज. गाली गलौज नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है और एरोगेंट नहीं होना है ग्रुप डिस्कशन के अंदर. मेनी पीपल दे पॉइंट फिंगर्स, डोंट पॉइंट फिंगर्स. हाथ दिखा के बात करते हैं, प्लीज डोंट डू दैट. लेग्स को क्रॉस करके एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के आप लोग बैठे होते हैं, नेवर डू दैट. टेबल थंब, टेबल पे हाथ पछाड़ते हैं, नेवर डू दैट. दीज थिंग्स गिव अ नेगेटिव इमेज ऑफ योर्स. ऐसा कभी आप लोगों को नहीं करना है. डोंट स्पीक टू मच. ऐसा मत सोचिए कि जितना ज़्यादा बोलेंगे आप उतना इजीली क्वालिफाई करेंगे. कई बार ज़्यादा बोलने से द चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड आर एक्चुअली रिड्यूस्ड. सो डोंट ट्राई टू स्पीक टू मच. बोलिए, माइट बी फॉर 1 minute 2 minutes, genuine thing and just pass on the baton. Just allow the next speaker to start. Don't self contradict. कई बार बहुत ज़्यादा बोलने के चक्कर में हम लोग शुरू करते हैं लव मैरिज से और ख़त्म कर देते हैं अरेंज मैरिज पे. शुरू करते हैं हम लोग के गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है और लास्ट में हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बुराई पे खत्म हो जाते हैं. नेवर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट योर ओन स्टेटमेंट. ओके, नेवर गिव अप. ग्रुप डिस्कशंस के अंदर कई बार देखा गया लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता, तो आप लोग ट्राई करते हैं, एक बार दो बार बोलने का मौका नहीं मिलता तो प्लीज डोंट गिव अप. ट्राई टू अगेन कीप ऑन मेकिंग वे एंड ट्राई टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट. बिकॉज अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर आपने मुंह नहीं खोला तो सामने वाले को पता ही नहीं है व्हाट वाज योर ओपिनियन, हाउ कैन यू कम्युनिकेट, हाउ वेल कैन यू कम्युनिकेट, एंड प्रोबब्ली योर चांस इज ओवर. सो नेवर गिव अप एंड मेक मल्टीपल एंट्रीज. डोंट ट्राई टू डोमिनेट और इंटरप्ट. कोई भी बोल रहा है, कोई सही बात बोला उसको काट दिए. हर कभी भी कोई भी कुछ भी बोल रहा है आप उसको काट रहे हैं. You are trying to interrupt with each and every person who is speaking out there. Please don't do it. It will not work in your favor. Group discussion में don't try to dominate the group discussions. Try to put your points and be a part of a team. Don't be a clown in a group discussion. जोकर मत बन जाइए. हर चीज पे जोक बोल के, हर चीज पे जोक बोल के, don't try to be a clown. Occasionally you crack a joke, that's fine. But please ensure that you don't make a joke of yourself. Okay. Many people have noticed that they draw too much on their personal experiences. Okay, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बहुत बात करते हैं. मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया, एक बार मेरे साथ वैसा हो गया, दिस व्हाट हैपेंड, दैट इज व्हाट हैपेंड. नो, प्लीज डोंट टॉक टू मच अबाउट योर ओन पर्सनल लाइफ. Okay, also don't put out fake facts and figures.
आप लोग किस तरह से ग्रुप डिस्कशन अच्छे से कर सकते हैं. यू कैन डू ग्रुप डिस्कशंस वेरी वेल बाय इंप्रूविंग योर जनरल नॉलेज एज वेल एज करंट अफेयर्स. उसके लिए आपको न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स एज वेल एज जो नॉवेल्स ऐसी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी, सो दैट योर थॉट प्रोसेस, योर आइडियाज़, योर करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ऑल दीज थिंग्स विल इम्प्रूव. कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी ग्रेजुअली. ओके. ग्रुप डिस्कशन के अंदर लेटेस्ट कौन से टॉपिक्स हैं वो चीज़ आप पढ़ते रहिए. ट्राई टू वॉच सम गुड ग्रुप डिस्कशन मूवीज एंड गेट टिप्स फ्रॉम देम. ओके. जस्ट फाइनल टू वर्ड्स अबाउट रिगार्डिंग ग्रुप डिस्कशन. अगर आप एक इनिशिएटर बनना चाहते हैं ग्रुप डिस्कशन, दैट इज द पर्सन हु स्टार्ट्स और इनिशिएट्स, द बेस्ट थिंग इज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. शुरुआत में अगर वो सेशन आपने ओपन कर दिया तो इट्स अ वेरी गुड चांस फॉर यू टू मेक अ वेरी गुड इंप्रेशन, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ बेस्ट इंप्रेशन. ओके. अप्रोप्रिएट कॉन्फिडेंस दिखाइए, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जब आप सेशन को ओपन कर रहे हैं, ट्राई टू एक्सप्लेन द टॉपिक. शुरुआत में ही सीधा अपना ओपिनियन मत रख दीजिए. ट्राई टू पुट योर टॉपिक, एक्सप्लेन द टॉपिक टू एवरीवन. उसके बाद आप अपना पॉइंट बोल दीजिए. Okay, for example, if I'm talking about government college versus private college, so I can just say, okay, students, today we all are here to have a discussion on government college versus private college, the pros and cons. So, according to my opinion, private colleges are better because of so and so, so and so, so and so, so and so. Just put on these things and then just pass it on to someone else. That's it. Okay, try to keep it short. ऐसा ना हो कि आप बोलते जा रहे हैं फिर किसी को आपको रोकना पड़े, भाई रुक हम लोग को बोलना है. No, just might be talk for 1 minute, 2 minutes, and then just pass it on to someone else. Let them continue. Okay. इसी तरह से if you want to be the summarizer or if you want to be the concluder, again a quote says, all's well that ends well. आप पूरे सेशन के अंदर आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर आप पूरे सेशन के डिस्कशन को अच्छे से समराइज से कंक्लूड कर देते हैं, द लास्ट मोमेंट विल वर्क फॉर यू. पूरे सेशन के अंदर आपको बोलने का मौका ही नहीं मिला, अगर आपने लेकिन ये काम अच्छे से कर दिया, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. ओके. समराइज करते वक्त आपको अपना नया पॉइंट नहीं रखना. यू हैव टू एक्चुअली कंक्लूड व्हाट वाज द डिस्कशन इन द ग्रुप. उसकी समरी ग्रुप की क्या निकली, आपको सिर्फ वही एक चीज़ बतानी है, उसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं बताना. यू डोंट नीड टू ऐड योर न्यू पॉइंट्स. लास्ट में समराइज करते वक्त आपको अपना नया पॉइंट ऐड नहीं करना है. आपको जस्ट ग्रुप के अंदर जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो व्यू पॉइंट्स आए हुए, आपको जस्ट वही चीज़ बतानी है. दैट्स. कई लोग गलती करते हैं, समराइज करने का मौका मिल गया तो उसको खींचते जाते हैं. अब खुद का पॉइंट ऐड करते हैं एंड दे ट्राई टू ड्रैग इट अगेन एंड अगेन. प्लीज डोंट डू इट. ओके. उसको भी ब्रीफ रखिए और इंक्लूसिव. जितने ओपिनियंस आए सारे ओपिनियंस को आप उसके अंदर से नोट कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए सारे ओपिनियंस. खुद का एक पॉइंट लास्ट में मत रखिएगा. दैट्स इट. Okay, guys, finally we just come to the communication skills session. That was the last one. Okay. I will directly go on to the components of communication. Communication skill में आपको एक briefly इतना बता दूं, communication skill मतलब बोलना नहीं होता. Right now the communication that is going on between us is, I can see the number of participants, I can see the responses that the participants are giving. This is communication. मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ respond कर रहे हैं. It doesn't make sense until and unless I get feedbacks from you guys. Okay, so communication skills के there are some important components. The first and the foremost is listening. आप लोग जो कर रहे हैं, that is actually the most important part of your communication. You need to listen. You need to be a good listener. मेरे साथ में कोई खड़ा कोई बात कर रहा है, if I'm just sitting here and I'm just nodding my head, मैं सर हिला रहा हूँ, लेकिन मुझे actually पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है. It is not listening. We need to acknowledge. That is what is listening. ओके. कम्युनिकेशन के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप जो बोलते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स. हाथ से जो इशारे करते हैं आप लोग, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी का जो स्टांस है, ये सारी चीज़ें इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 60% ऑफ योर कम्युनिकेशन. Okay, so body language, that is what is going to be the next session on Saturday. It's an amazing topic that we'll be taking. We'll discuss more on that at that time. कम्युनिकेशन बी शॉर्ट एंड स्वीट. बहुत ज़्यादा बोलने से मतलब नहीं है. बहुत ज़्यादा बोलने से कई बार आप बोलना क्या चाहते हैं वही भूल जाते हैं. एज आई डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन इन थ्री इडियट्स, व्हेन आमिर खान यूज्ड द डेफिनेशन ऑफ अ मशीन इज ओन वर्ड्स, एट द एंड ऑफ द थिंग द प्रोफेसर आस्क्ड, कहना क्या चाहते हो? व्हेन यू से सो मच you actually miss the point. So don't do it.
इन एनी कम्युनिकेशन हैव अ पर्सनल टच, सामने वाले बंदे से पर्सनल टच रखने की कोशिश कीजिए. Confidence should always be there in any communication. Lack of confidence gives the receiver an impression that might be the other guy is not being honest or sincere. Okay, empathy versus sympathy is very important. Empathy और सिंपथी मतलब जस्ट टू ट्राई टू फील ओके, वो बंदे के साथ बुरा हो गया, एक्सीडेंट हुआ किसी का, तो अगर दूर खड़े खड़े मैं यहाँ से बोलूँ अरे यार उसके साथ तो बहुत बुरा हो गया, दैट इज व्हाट इज नोन एज सिंपथी. बट इफ आई फील दैट ओके, how is the pain that that guy is feeling and I try to help him, that is what is known as empathy. That is the reason why actors and all these models they talk more about empathy, getting into the shoes. वो बंदे की जगह पे खड़े रह के सोचने की कोशिश कीजिए कि कैसा फील कर रहा है. That is what is known as empathy. That is also a part of communication, guys. ओपन माइंडेड अप्रोच. मैं कभी भी किसी से बात कर रहा हूँ आई शुड हैव एन ओपन माइंड. ओके, मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाला बंदा वो माने भी सही, शायद ना भी माने, बट आई शुड बी ओपन टू दैट. ओके, कन्वे रिस्पेक्ट. हर बंदे से बात कर रहे हैं तो प्लीज कन्वे अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट टू देम. ओके, डोंट ट्राई टू इम्पोज और एनफोर्स योर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन देम. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन इज फीडबैक. फीडबैक डेफिनेटली लीजिए. जब तक मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यू गाइज आर लिसनिंग, and till that time I am actually not confident that is my message going through to you all guys. So feedback is very important. So can you all send some feedbacks right now so that I can come to know? I hope all of you are listening, and I'm just trying to wait for some feedbacks that you guys can send. अगर आप लोग कोई फीडबैक चैट बॉक्स उसके अंदर अगर आप लोग कुछ फीडबैक लिख सकें, और माइट बी इफ यू कैन जस्ट सेंड सम स्माइली और थम्स अप समथिंग, आई वुड कम टू नो दैट ओके द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग. ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और सब लोग शायद इधर उधर कुछ चले गए हैं. ओके, सो यस, फीडबैक्स. Most of the students are habituated of writing only the name and the college name. But feedback means, yes, you, if you can send in some thumbs up and something like that. Okay, guys, thank you. Again, the medium or language. English जिसको आप लोग सब बहुत important समझते हैं, that is actually just a mode of communication. It's just a medium of communication. इसीलिए जो आप लोग इंग्लिश के बारे में मैक्सिमम बात करते हैं, it's important, but it's not the most important. It's just a medium of communication. आप लोगों को अगर इंग्लिश नहीं पता है तो मैं इंग्लिश में कितना भी बोल लूँ, दिस कम्युनिकेशन डजंट मेक एनी सेंस. दैट्स द रीजन आई ट्राई टू मिक्स बिटवीन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, सो दैट इवन स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग दिस सेशन फ्रॉम आउटसाइड गुजरात दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन ब्लैबरिंग. मैं यहाँ कुछ भी बड़बड़ाता रहूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, दैट इट डजंट मेक एनी सेंस. ओके, अगेन द टोन और मॉड्यूलेशन, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आई लाइक. आप जो बोल रहे हैं उस टाइम पे आपका जो टोन है, हाउ इज दैट टोन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी सेंटेंस को अलग अलग टोन में बोल दीजिए, अलग अलग वर्ड्स को स्ट्रेस करके बोल दीजिए, यू विल कम टू नो दैट उसका मीनिंग पूरा अलग निकलता है. ओके, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ गलतियां जो मैक्सिमम लोग करते हैं अपनी लाइफ में, इन पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ इन कम्युनिकेशन, इज यूजिंग इनकरेक्ट मीडियम टू कन्वे इंपॉर्टेंट मैसेज. बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई मैसेज है, आप लोग उसको नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं. दैट्स एक्चुअली वेरी बैड. इसीलिए कहते हैं कई बार कुछ चीज़ें इन पर्सन बात करके ही सॉल्व करनी चाहिए. सम थिंग्स हैव टू बी सॉल्व स्पेसिफिकली ऑन कॉल ओनली. कॉल में व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन यू कैन अंडरस्टैंड दैट इमोशन, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट इमोशन in text messages. इसीलिए actually these things now the message it comes with emojis. Emojis means emotions are also shown. Okay, so always use the correct medium. चीज का जैसा इंपॉर्टेंस है उसको उस तरह से प्रेजेंट कीजिए. पैसिव और लैक ऑफ इंटरेस्ट, इट हैपेंस इन आवर होम्स ऑलमोस्ट एवरी डे. पेरेंट्स आपके साथ बात कर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ बात करें, टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग और आप मोबाइल के अंदर बैठे हुए हैं, यू आर नॉट एट ऑल लिसनिंग टू देम. It gives a very bad impression. You are not showing interest in that communication. Similarly, aggressive communication, गुस्सा करके बात करना, गलत टोन में बात करना, all these things, aggressive communication, it doesn't serve your purpose. Blaming, intimidating others, failing to listen. सामने वाला बंदा आपसे बात कर रहा है and you are actually not at all listening. This is a very good example of bad communication. Okay, कुछ चीज़ें जो communication में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए. Important points are avoid fillers like don't do such things. Fillers जो आप लोग यूज कर like, so yeah, don't use such words.
This distracts the listeners. एक noise जैसा create करें and give some irritating sense to the listeners. Always give correct information. Okay, all the info should be coherent. सारी चीज़ों को related sense में बात कीजिए, सीधी तरह से बात कीजिए, so that the person can understand. Reinforce your words with non-verbal gestures. आपका body language, मैंने आपको जैसे बताया, it constitutes more than 60% of your communication. मैं कुछ भी बोलूँ आपसे, अगर मेरा body support नहीं कर रहा है मुझे, तो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा that I am lying. Okay, guys, in the next session we will be taking body language. You will be amazed to know कि बिन बोले ही हम लोग सामने वाले को कई बार कितने सारे non-verbal cues से information दे देते हैं. You will be amazed to know. Okay, so that will be taken up obviously in the next sessions. Messages should be complete. जो बोलना है वो पूरा बोलिए. Okay, क्योंकि आधा half information is totally wrong. आपको पता ही नहीं चलता उसका मीनिंग क्या है. Like if I am saying, okay, आज का सेशन खत्म, इससे अब क्या पता चला? मेरा पूरा सेंटेंस आज का सेशन खत्म, नाउ फीडबैक्स और उसके बाद खत्म. आज का सेशन खत्म, फीडबैक्स के बाद. That's what the entire sentence was. So it's very important to pass on the message completely. Okay. So guys, I think I tried to very quickly revise the three topics which we have already covered: resume, CV, group discussion, as well as communication skill. Next session would be very important session on body language. It's very much important in our daily lives. Hoping to see you all guys again on next Saturday. Now, if anyone is having any questions, you can just put on. Okay, अगर आप लोगों के कोई questions है, you can just put on. In the meantime, I think किसी ने कोई क्वेश्चन अगर डाला हो शुरुआत में, if you can just put that question again, we will take it again. There's a question. Nihar was asking, sir, as a fresher, we don't have any professional contact. Then who should we mention as reference? Good question, Nihar. Generally, for students, the references are the faculties. आप अगर अपने रिज्यूम के अंदर कहीं पे भी रेफरेंस मेंशन कर रहे हैं, रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि सपोज आपके बारे में कुछ और चीज़ें कंपनी को जाननी हो तो किससे बात करेंगे. सो ऑब्वियसली यू बीइंग इन कॉलेज, one of the most authentic people would be your college faculties who have taught you. Okay, so you can mention reference Professor so and so, chemical engineering department, GEC Bhuj, and you have to mention their contact number as well as mail ID. Now it's very important that whenever you mention this thing, if you are mentioning my name in your resume as your reference, you need to inform me, sir, I have put your name. In fact, you need to ask me in prior. आपको पहले मुझसे पूछना पड़ेगा, सर मुझे, मैं इस तरह से एक जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने वहाँ पे रेफरेंस के अंदर सर मुझे आपका नाम डालना है, मैं डाल दूँ. You should take the prior permission of the person whom you want to keep as reference, and then once that person agrees to it, you can put up his name in the reference, and in case the company needs, they will get in contact with him. Okay, so I think my answer to Nihar. Anyone else, if you want to ask, guys, then we can just take, and else we will just wind up. Eliasgar is asking, sir, which technical skills are necessary or impactful while you are preparing resume or CV? See, guys, as I said, most important thing is your academic marks are not the most important things in your CV. Achievements. I have seen guys like they would say, I have got this grade. I am might be